Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I am going to guide you about the complete application process of Turkiye Bursalari Scholarship. It is a fully funded scholarship offered by the Turkish government. It is offered for the diploma, master's, PhD and bachelor's level students. Students of any level can apply for this scholarship, and you will find a wide range of programs and universities in this scholarship. So in this video, first I'll talk about the benefits of this scholarship before jumping into the process of the application. In this scholarship, you will be provided with university and department placements, and then this scholarship will cover your whole tuition fee, so you won't have to pay any tuition fee in this scholarship. And in this scholarship, you will have to learn 1 year Turkish language. So they will make you learn Turkish language for 1 year before starting your course. And then in this scholarship they will also provide you accommodation, and they will also provide you once off flight ticket when you are coming to Turkey for your education, and then when your education is completed and you are going back to your home country, so they will provide you with those tickets. And then you will also be given your health insurance. You will also be given monthly stipend of 3500 Turkish lira if you are an undergraduate student, and 5000 Turkish lira at master's level, and 6500 Turkish lira at PhD level per month. So these are the benefits of the scholarship. Now we will start our application process. For that, you will have to come to the bottom of this page. Here you will see the application/login button. You will have to click on this button. Here you will click on the register button since we are new users. And here you will have to enter your information. For example, here you will have to write your first name, then last name, then you will have to choose your gender. Here you will choose your date of birth. Here you will choose your nationality, and here you will write your email address. After entering all of your information on this page, here you will click on the I'm not a robot button, and then you will click on the I approve, and after that you will click on the save button. So here they have given my information. If it's correct, then you will click on the I approve, and after that you will click on the save button again. So my registration has been successfully completed, and now they have sent me a link in my email address. I will activate my account through this link. So as you can see, I have received a link in my inbox. By clicking on this link, my registration will be completed. So my registration has been successfully completed. Now I will log in my account. After successfully completing my registration, here I will enter my login detail, and I will log in my account. सक्सेसफुली लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रीन जहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमने फिल करनी है. फर्स्ट यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन. उसके सामने यहाँ पे रेड मार्क बना हुआ है. इसका मतलब है कि ये आपने लाजमी फिल करना है. फिर यहाँ पे हमें कुछ येलो मार्क्स के साथ भी नज़र आ रहा है. येलो मार्क का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका ये डेटा आपके पास है तो फिल कर ले, अगर नहीं भी फिल कर दे तो फिर भी इसकी वजह से आपका एप्लीकेशन जो है वो रुकेगा नहीं, लेकिन ये रेड मार्क्स की वजह से आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा अगर आप इनको फिल नहीं करोगे. तो सबसे पहले आप आओगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कुछ मांगी गई है, तो वो फिल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे.
एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखोगे। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज़ करोगे। यहाँ पे आप अपना स्टेटस लिखोगे, सिंगल, मैरिड हो या डाइवोर्स्ड हो, जो भी। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी है आपकी पाकिस्तान, जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम लिख ली थी। फिर यहाँ पे आप कंट्री ऑफ बर्थ लिखोगे, वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। तो यहाँ पे आप उस कंट्री का नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपना सिटी ऑफ बर्थ लिखोगे, वो सिटी जहाँ पे आप पैदा हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रैंडमली कोई से भी चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ आईडी मांगा गया है। तो टाइप ऑफ आईडी में आप जो है या पासपोर्ट या फिर अगर आपके पास आईडी है तो वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप अगर सिटीज़नशिप नंबर सेलेक्ट करोगे तो फिर आप यहाँ पे अपने आईडी कार्ड का नंबर लिख लोगे और यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड का स्कैन्ड कॉपी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई और सिटीज़नशिप भी है किसी और कंट्री की, आपके पास डबल सिटीज़नशिप है, पाकिस्तान की, इंडिया की या बांग्लादेश की और दूसरी किसी और कंट्री की, तो यहाँ पे आप मार्क करके जो है अपनी सेकंड सिटीज़नशिप की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपसे कुछ आपके रिलीजन्स के बारे में क्वेश्चन है, तो वो अगर आप चाहो तो आंसर कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप वो आंसर ना करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप अपना रिलीजन चूज़ करोगे अगर आप इसे आंसर करना चाहो। फिर यहाँ पे आप अपनी एथेंसिटी चूज़ करोगे, अगर आप चूज़ करना चाहो कर लो, अगर नहीं करना है तो फिर आप जो है इसे भी खाली छोड़ दो। फिर यहाँ पे आप जो है अपना डिसेबिलिटी स्टेटस लिखोगे। अगर आपकी कोई बीमारी है तो यहाँ पे आप वो लिख लो, अगर नहीं है तो फिर आप जो है इसे ऐसे ही छोड़ दो। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आप आओगे बैक। फिर नीचे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो वो यहाँ पे डाल लो। वो डालने के लिए आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास हॉबीज़ की लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आप जो है कोई सी भी हॉबीज़ जो है अपनी यहाँ पे चूज़ करके जो है वो सेव कर सकते हो। अपनी हॉबीज़ यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे उसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल लिख लोगे। डिटेल लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। अब नीचे आपके पास स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको जो है ड्रामा या एक्टिंग आती है, आपने कहीं की है, या फिर अगर आपको फोटोग्राफी आती है, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग या कोई और है तो यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। फिर इसी तरह म्यूज़िक में अगर आपके पास कोई टैलेंट है वो कर लो। यहाँ पे स्पोर्ट्स में अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो वो चूज़ कर लो। अगर इन लिस्ट में नहीं है तो फिर यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपका ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया तो अभी भी यहाँ पे रेड मार्क है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। जब आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक जो है डबल टिक आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन डालनी है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में जो है आप यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखोगे। आपके मदर का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लो। मैं वैसे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे सामने आप जो है इज़ योर मदर अलाइव में येस या नो चूज़ करोगे। अगर आपकी मदर ज़िंदा है तो आप येस चूज़ कर लो, अगर ज़िंदा नहीं है तो आप नो चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आप जो है अपना फादर का नाम लिखोगे। फादर का नेम लिखने के बाद जो है आप सामने जो है यहाँ पे लिखोगे कि वो ज़िंदा है तो येस, अगर ज़िंदा नहीं है तो आप फिर यहाँ पे नो लिख लो। फिर उसके सामने जो है आपके पास ये ऑप्शंस भी है कि अगर आपकी मदर काम करती है, कोई जॉब करती है, कोई बिज़नेस करती है तो आप यहाँ पे चेक करके नीचे जो है उसकी जॉब की डिटेल सारी लिख लोगे। सबसे पहले उस कंपनी का नाम लिखोगे जहाँ पे वो काम करती है, फिर उनकी जॉब का लिखोगे कि कौन सी पोजीशन पे जॉब करती है, फिर यहाँ पे आप जो है उनका टाइटल या पोजीशन लिखोगे। अगर नहीं करती जॉब तो फिर इसको जो है आप ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहाँ फादर का डिटेल्स के सामने अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो यहाँ पे टिक करके जो है आप अपने फादर्स की डिटेल डाल लो। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स आप लिखोगे। अगर आप एक हो, दो बहन भाई हो, तीन बहन भाई हो, चार हो, जो भी हो तो वो आप यहाँ पे लिख लो। फिर यहाँ पे आगे जो है आप टोटल मंथली इनकम चूज़ करोगे कि आपके फैमिली की टोटल मंथली इनकम क्या है। तो वो आप जो है अपनी इनकम जो रुपीज़ में है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आप ऊपर सेव पे क्लिक कर लो। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन दो टिक जो है वो आपके पास विजिबल हो गए हैं। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है कॉन्टैक्ट इन्फो एंड
करंटली जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फो है वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। कॉन्टैक्ट इन्फो में जो है आप सबसे पहले यहाँ पे अपना कंट्री चूज़ करोगे। अपना कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सिटी चूज़ कर लोगे। सिटी जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो चूज़ कर लो। उसका पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पे लिख लो। अपना फ़ोन नंबर लिख लो अपने घर का। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लो। उसके बाद जो है आप अपना स्ट्रीट नंबर यहाँ पे लिख लो, बिल्डिंग नंबर लिख लो और डोर नंबर लिख लो अगर कोई है तो। फिर अगर आप का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके रहने की जगह से डिफरेंट है तो आप फिर यहाँ पे इस पे चेक करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे लिख लो। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस वो सेम है तो फिर आप इसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दो। ये एम्प्टी छोड़ने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखोगे कि आप कितने अरसे से इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पर रह रहे हो। तो वो आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपना हिसाब लगा के यहाँ पे नीचे लिख लोगे कि मैं इतने ईयर्स और इतने महीने से जो है यहाँ पे रह रहा हूँ। अगर आप ईयर्स में लिखते हो तो यहाँ पे ईयर्स चूज़ कर लो। ईयर्स चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे लिख लो कि मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 19 ईयर्स से जो है यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर नीचे जो है आप अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल के लिंक्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जो भी है वो आप उसके सामने ही जो है वो लिंक पेस्ट कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने जो है अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके लिए जो है आपको डिफरेंट जो है वो सेक्शंस गिवन है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे मिडिल स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप हाई स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। फिर एसोसिएट डिग्री अगर आपने कोई की है 2 साल की जो होती है डिग्री, वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। बैचलर्स की डिग्री की भी डाल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो भी आपने जो है वो एजुकेशन की है वो यहाँ पे जो है क्लिक करके वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने अपनी सारी एफएससी या जो है ए लेवल्स की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे डाल लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से भी आपने जो है अपना कॉलेज पढ़ा है। फिर यहाँ पे जो है आप अपना सिटी चूज़ करोगे, जिस सिटी में जो है आपने कॉलेज पढ़ा है वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने स्कूल का नेम चूज़ कर लोगे। स्कूल का नेम जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो है वो चूज़ कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई सा भी यहाँ पे रैंडम चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशनल स्टेज चूज़ करोगे। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन है तो वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर आप हाई स्कूल टाइप चूज़ करोगे। अगर आपका रिलीजियस कोई मदरसा वगैरह है तो रिलीजियस चूज़ कर लो। और अगर नॉर्मल स्कूल कॉलेज है तो आप जनरल हाई स्कूल जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे जो है आप फील्ड चूज़ करोगे कि किस फील्ड में आपने किया है। अगर आपने जनरल कोई किया है तो फिर आप जनरल चूज़ कर लो। अगर आपने जो है प्री मेडिकल किया है तो फिर आप यहाँ पे साइंस चूज़ कर लो। वैसे आप नॉर्मली जो है वो जनरल ही चूज़ कर सकते हो नीचे। फिर आप यहाँ पे आओगे स्टेटस में। तो अगर आप जो है एफएससी अपनी कंप्लीट कर चुके हो तो यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ कर लो। और अगर नहीं कंप्लीट की तो फिर नीचे आप जो है यहाँ पे कंटिन्यूस चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखोगे। स्टार्ट डेट जिस डेट से आपका जो है कॉलेज शुरू हुआ, मतलब आपका फर्स्ट डेट जिस डेट से शुरू हुआ। फिर अब यहाँ पे जो है जिस डेट को आपका कॉलेज जो है यानी आपका एफएससी जो है इंटरमीडिएट ख़त्म होगा या ख़त्म हो चुका है तो वो आप उसकी डेट यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे ग्रेड टाइप चूज़ करोगे। ग्रेड टाइप हम यहाँ पे 100 चूज़ करेंगे। 100 चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज चूज़ कर लोगे। तो पहले आप अगर आपकी परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल है 89.99 आपकी परसेंटेज है तो पहले आप यहाँ पे 89 चूज़ कर लोगे। फिर पॉइंट के बाद जो फिगर्स है उसके लिए आप सेकंड ब्लैंक पे आके जो है वो चूज़ कर लोगे। तो अगर मेरी जो है 100% में से 89.99 परसेंटेज है तो इस तरह से मैं वो यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस पे ब्लैंक पे क्लिक करके अपनी डीएमसी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करके जो है बैक पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे जो है आप अपनी अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन डालोगे। ये आपके पास जो है जो ब्लू नज़र आ रहे हैं वो आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी जो है हाई स्कूल और की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। तो मैं जब हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डाल के जो है सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद ऑप्शन भी मेरे पास जो है वो ब्लू हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप बैचलर्स डिग्री पे क्लिक करके जो है अपनी बैचलर्स डिग्री की डिटेल भी डाल सकते हो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री है उसकी डिटेल भी डाल सकते हो।
और अगर आपने जो है मज़ीद क्वालिफ़िकेशन की है तो वो आप जो है 1 बाय 1 करके जो है उसकी डिटेल डाल दोगे। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा है लैंग्वेज डिटेल्स का। लैंग्वेज डिटेल में जो है आप सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज़ करोगे। नेटिव लैंग्वेज आपकी जो भी है, उर्दू है, पश्तो है, जो भी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। नेटिव लैंग्वेज मतलब आपकी मादरी ज़ुबान। तो आप यहाँ पे अदर लैंग्वेज स्किल्स में जो है वो यहाँ पे 8 पे क्लिक करके जो है वो इंग्लिश की डिटेल लिख सकते हो। अगर आपके पास इंग्लिश कोई सर्टिफिकेट है या कोई टेस्ट आपने दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करके यहाँ पे मार्क कर दो है कि आई हैव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट आई स्पीक दिस लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे एग्ज़ाम चूज़ करोगे। एग्ज़ाम में जो है आप यहाँ पे अगर आपने आइल्स टॉफिल कुछ भी दिया हुआ है तो वो चूज़ करके उसकी डेट यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप जो है उसका यहाँ पे बैंड अपना लिख लोगे। बैंड लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे आइल्स का। वो अपलोड करने के बाद जो है आप ऊपर जो है सेव पे क्लिक कर लोगे। अदर लैंग्वेज में इंग्लिश की अगर आपने आइल्स वगैरह दिया हुआ है वो डाल के फिर आप यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज स्किल्स, अगर आपको कोई टर्किश आती है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल डाल दो। आप यहाँ पे जो है नो चूज़ कर लो। नो चूज़ करने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस में जो है आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो पूरा यहाँ पे डाल लोगे। पहले आप जो है कंट्री सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस हुआ है। फिर आप जो है कंपनी नेम, जहाँ जिस कंपनी में आपने काम किया है वो चूज़ कर लो। फिर पोजीशन अपने चूज़ कर लो। पोजीशन के बाद जो है आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो लेफ़्ट चूज़ कर लो। अगर आप जॉब अभी भी वहीं पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे आई एम करेंटली एम्प्लॉयड चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ पे अपनी डेट लिखोगे कि कब से आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई और कब जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हुई, तो आप यहाँ पे वो एंड डेट में लिख लोगे। फिर यहाँ पे नीचे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग का काम करता था तो मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा। अगर आप कोई और जॉब करते थे तो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पे लिख लोगे कि जॉब में मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। वो लिखने के बाद आप ऊपर सेव पे क्लिक करके जो है वो जाओगे नीचे फिर। वर्क एक्सपीरियंस डालने के बाद अगर आप जो है कोई इंटर्नशिप कर चुके हो या आप इंटर्नशिप करंटली कर रहे हो तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो इंटर्नशिप तो उसमें आप यहाँ पे बॉक्स में चेक करके नीचे जो है अपनी इंटर्नशिप की डिटेल 8 पे क्लिक करके डाल दोगे। यहाँ पे 8 पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कंट्री के। तो कंट्री का नाम लिख लो कि जहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया है। फिर कंपनी का नाम लिख लोगे, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन लिख लोगे। अगर आपने 10 मंथ किया है 10 लिख लो, 24 महीने किया है वो आप जो है मंथ्स में यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे जो है टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप लिखोगे कि किस चीज़ में आपने इंटर्नशिप किया है, उसका नेम यहाँ पे लिख के आप ऊपर सेव पे प्रेस करके आपका इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और अगर आपने कोई इंटर्नशिप जो है वो नहीं किया तो फिर आप इसको इसी तरह ही खाली ही छोड़ दो, इसको आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे जो है आप अपनी सीवी के हेडिंग के नीचे आपको जो है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करके ऊपर सेव पे क्लिक कर दोगे। वो करने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का। यहाँ पे अगर आपने जो है कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं जीआरई, जीमेट, सेट वगैरह, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्ज़ाम्स जो है वो मांगे जाते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके डाल सकते हो। पहले आप यहाँ पे एग्ज़ाम का नेम चूज़ करोगे। अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है तो वो चूज़ कर लो, अगर जीआरई दिया है वो कर लो। जौन सा भी आपने जो है वो एग्ज़ाम दिया है तो वो आप यहाँ पे वो चूज़ करके उसकी जो है ग्रेड वगैरह लिख के, एग्ज़ाम डेट लिख के, कंट्री लिख के उसका जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट अपलोड कर दो कि जिस जो डॉक्यूमेंट आपको जो है वो मिला होगा एज उस टेस्ट के रिज़ल्ट में जिससे प्रूफ होता हो, तो वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया तो आप फिर इसको जो है ऐसे ही छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे जो आपका है सोशल एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके जो है वो डाल सकते हो। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर चूज़ करोगे कि अगर आपने
सर्टिफिकेट लिया है उसकी डिटेल डाल रहे हो, स्कॉलरशिप लिया है उसकी डिटेल डाल रहे हो, अवार्ड लिया है उसकी डिटेल डाल रहे हो, तो वो आप यहाँ पे चूज़ करके जो है उसकी डिटेल डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने अवार्ड चूज़ किया, तो यहाँ पे फिर मेरे पास अवार्ड का नेम है, तो सबसे पहले मैं नेम लिखूँगा, फिर डेट, फिर इंस्टीट्यूशन जिसने मुझे अवार्ड दिया, फिर जो है अवार्ड के बारे में जो है अवार्ड का नाम, प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेट फील्ड लिखूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अवार्ड का अपलोड करोगे और यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल थोड़ी सी लिख लोगे डिस्क्रिप्शन में। वो करने के बाद अगर आपने कोई वॉलंटरी काम किया है, एनजीओ में कोई काम किया है या कोई इंस्टीट्यूशन में जो है वॉलंटरी काम किया है, तो वो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उसकी डिटेल डाल लोगे। वो डालने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, तुर्की एक्सपीरियंस। तुर्की एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि आप तुर्की में हो या कभी तुर्की में आए हो, तो आप यहाँ पे अगर हो आए हो कभी या अभी रह रहे हो तो यहाँ पे उस लिहाज से आप येस कर लो, अगर कभी तुर्की नहीं गए तो नो कर लो। फिर आप यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार ये स्कॉलरशिप ले चुके हैं या इसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं अभी भी, तो आप फिर यहाँ पे यस चूज़ कर लो। अगर आपको कोई रिश्तेदार नहीं ले चुके या अभी नहीं पढ़ रहे स्कॉलरशिप पे, तो फिर आप नो चूज़ कर लो। फिर आपसे पूछा गया है कि आपके कोई रिश्तेदार तुर्की में रह रहे हैं, तो अगर रह रहे हैं तो यस कर लो, अगर नहीं रह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नो कर लो। फिर आप यहाँ पे ऊपर सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। सारा डेटा फिल करने के बाद आप आओगे होम पेज पे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है आपके पास सारी डिग्रीज़ की डिटेल आ जाएगी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपके पास जो है पहले आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। वो फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रीन टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद आप होम पेज पे क्लिक करोगे। अगर आप एसोसिएट डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो तो आप एसोसिएट डिग्री पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर्स पे आके आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने अप्लाई पे क्लिक करके बैचलर्स में अप्लाई करो। और अगर आप मास्टर्स के लिए करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स में ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने अप्लाई पे क्लिक करके मास्टर्स में अप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल हम जो है मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप मास्टर्स पे अप्लाई करोगे तो सामने आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जो है हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन की कंडीशंस लिखी हुई है। सबसे पहले जो है आपके पास ऊपर कुछ पॉइंट्स एप्लीकेशन की कंडीशंस के लिए लिखे हैं। फिर नीचे जो है आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ज़रूर जो है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर आप अपलोड करें तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे हमारे पास जो है डिप्लोमा या स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है उसका बोला गया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। फिर आपसे डीएमसी मांगी गई है और फिर आपसे जो है आईडी कार्ड या पासपोर्ट का मांगा गया है डॉक्यूमेंट। फिर नीचे जो है आपसे फ़ोटोग्राफ मांगा गया है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड है। फिर नीचे जो है ऑप्शनल में आपके पास जीआरई सेट वगैरह के अगर एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स है तो वो आप अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास आइल्स वगैरह है वो अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की है उसका सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर या फिर और कोई अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स अगर है तो वो भी अपलोड कर दो। फिर आप यहाँ पे नीचे आके आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस पे टिक करके सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। एप्लीकेशन कंडीशंस सेव करने के बाद आपके पास जो है प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। प्रेफरेंस के ऑप्शंस में जो है आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी को जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दोगे। यहाँ पे ऊपर जो है आपके पास लिखा हुआ है कि आप जो है 12 यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। 12 यूनिवर्सिटीज़ में से अगर आप 1 करो, 2 करो, 10 करो, जितने भी करो आपकी मर्ज़ी है। आप 12 तक मैक्सिमम जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो है कैसे अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो डालनी है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड पे। ऐड में यहाँ पे आप जो है अपना प्रोग्राम चूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है प्रोग्राम चूज़ करता हूँ। प्रोग्राम चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस जो है वो ऐड कर दोगे। तो इस तरह से आप जो है अपने 12 प्रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर दोगे। वो ऐड करने के बाद जो है आप यहाँ पे आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लेटर ऑफ इंटेंट का।
लेटर ऑफ इंटेंट में जो है आप यहाँ पे जो है अपना लेटर ऑफ इंटेंट में ये आंसर करोगे। ऊपर यहाँ पे आपके पास डिटेल्स लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। इसकी गाइडेंस के लिए जो है आप गूगल पे जाओगे और लेटर ऑफ इंटेंट फॉर तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप लिखोगे तो वहाँ पे आपके पास सैंपल आ जाएंगे। तो उससे आइडिया लेके जो है आप यहाँ पे फिल कर लोगे। ये जो है आप चैट जीपीटी वगैरह से फिल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये सारा जो है आपने ख़ुद ही जो है फिल करना है और ख़ुद ही लिखना है। कहीं से आपने जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप जो है इसका सैम्पल पढ़ के आइडिया ले सकते हो। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे है जो कि है इंटरव्यू लोकेशन का। इंटरव्यू लोकेशन में आप जो है वो लोकेशन चूज़ करोगे जहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हो। क्योंकि इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आप अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान चूज़ कर लो। और यहाँ पे आपके पास 3 सिटीज़ के ऑप्शंस होंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तो जो भी आपको करीब पड़ता है वो यहाँ पे चूज़ करके आप ऊपर सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है रेफरेंस इन्फॉर्मेशन का। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन में आप जो है अपने रेफरेंस की डिटेल्स डालोगे। रेफरेंस की डिटेल जो है वो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके डाल दोगे। ऐड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसमें आप अपने रेफरी की डिटेल यहाँ पे डालोगे। पहले आप उनका नाम लिखोगे, उनका सरनाम लिखोगे, फिर आप उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लिखोगे। फिर आप जो है कंपनी या अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का लिख रहे हो तो फिर आप यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का नेम लिखो। अगर कंपनी का लिख रहे हो, कंपनी में एम्प्लॉयर का लिख रहे हो, किसी आपके बॉस वगैरह का, मैनेजर वगैरह का, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। टाइटल और पोजीशन उनका लिख लो कि अगर वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिख लो, सुपरवाइज़र है सुपरवाइज़र लिख लो। फिर यहाँ पे आप अपना रेफरेंस लेटर अपलोड कर लोगे। और अगर आपने ऊपर प्रोफेसर की डिटेल डाली है तो फिर आप यहाँ पे दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू माय एकेडमिक रेफरेंस पे क्लिक कर लोगे और वो फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे आप कोशिश करें कि अपने जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या सुपरवाइज़र्स की डिटेल ही डालें। यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे और फिर आप आओगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की डिटेल है कि अगर आप जो है इन रिक्वायरमेंट्स पे फुलफ़िल करते हो तो आपको जो है ये दूसरा स्कॉलरशिप है कोई, तो वो भी इसके साथ जो है वो मिल जाएगा। अगर आप जो है इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते तो फिर आप जो है इस हिसाब से जो है वो चूज़ कर लो। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वो सारा फिल कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो है इन लोगों ने जनरल वेटेज दिया है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम स्कोर का। तो उसका जो है यहाँ पे सारा गिवन है। अगर आपने जो है ये स्कोर किया है इससे अबव तो आप जो है फिर इसके लिए अप्लाई कर लो। अगर नहीं किया तो मत करें। फिर आपके पास आइल्स और टॉफिल का है कि अगर आपने ये भी किया है तो फिर आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर नीचे अगर आप फुलफ़िल करते हो इन रिक्वायरमेंट्स को तो येस कर लो, अगर नहीं करते तो यहाँ पे आप जो है नो चूज़ कर लो। फिर आप जो है यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है आपके पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस जो हम ऑलरेडी जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप के साथ साथ इस दूसरे स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो नो कर लो। फिर उसके बाद जो है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर तुर्की स्कॉलरशिप बिसाइड्स तुर्की स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यहाँ पे भी हम जो है नो कर देते हैं। फिर आप इसको ऊपर से सेव पे क्लिक करोगे। फिर आप जो है यहाँ पे आओगे समरी ऑफ एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप जो है चेक करोगे कि ये एप्लीकेशन जो है मैंने ख़ुद कंप्लीट की है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। वो यहाँ पे चेक करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सबमिट पे प्रेस करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होगा लेकिन अभी जो है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आप जब प्रेफरेंसेस में अपने प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे चूज़ करोगे तो उससे पहले प्रोग्राम की आपने जो है वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक करनी है। देखोगे कि उसमें जीआरई रिक्वायर्ड है कि नहीं है रिक्वायर्ड, कोई आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड। हर प्रोग्राम्स और हर यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले जो है आप वो रिक्वायरमेंट्स पढ़ के जो है वो देखोगे। अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो फिर ही आप प्रेफरेंसेस में उन प्रोग्राम्स को डालें। अगर आप नहीं करते तो वो फिर आप ना डालें। तो इस तरह से वो डाल के जो है आप अपनी एप्लीकेशन फिर सबमिट कर दोगे।
तो ये था हमारा तुर्की बुर्सलारी एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।